सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही एंड स्वच्छ रही. द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है दिल्ली में आफ्टर दिवाली एंड ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मेंस डिस्कशन प्रोग्राम. But before, let me tell you about something about answer writing in general. So this is the test paper 1, and since this is the first test, आप सबने दिया होगा test and you might be having some issues or some confusions and some questions about how to approach answer writing and what are the demands of the question and how do we actually present our answers in a good and structured format. So let us discuss something about that. So let us say that answer writing. Answer writing, what is the agenda? What is the agenda? Agenda is knowledge, analysis, argumentation or arguments, closure, or let's say, or let's combine these two. Effectiveness of arguments. ये सारे keywords हैं जो we will discuss in a while. So knowledge, analysis, effectiveness of arguments, connectedness and closure. Now these are the 5 parameters which I think are the most important, and one more. So this is the content related parameters. The other thing would be your, this is the agenda for content and this would be your presentation. Now in an answer you need to have both things going hand in hand and you need both things going correct, right? You can't compromise on one of the things or either of them. So the agenda is, you should be knowledgeable, you should have content for each and every keyword that is mentioned in our syllabus. Then you should have analysis power, and then combine these two, analysis with effectiveness of argument. Now what is the main problem why people are not scoring or why students are not scoring in mains exam is because they write what they know. They write what they know. क्या होता है, we all read so many material, so much of material, we read so many of sources, right? So we have information overload per se. So because of that information overload, let's say that question is asking about, for example, question is asking about PRIs and its role. How effective has been the role? How effective has been the role? The question is asking about this, but student would write about PRIs, उसके challenges क्या हैं, उसको reform कैसे कर सकते हैं, but that is not the main demand. The main demand is how effective is the role. So you need to discuss about community capacity. Community capacity. You can connect with this SDG. You should connect it with preamble's objective. So, and you should connect it with devolution of authority, decentralization of power and decision making. All these are the keywords that you need to write in your exam, in your answer, and you need to understand the demand, what the question is asking, not what you know about the question or the content, right? So you should not do this. You should not write what you know. You should write what they are asking, what is being asked, right? This is how you get good marks in mains. And then when you have this, what is being asked, when you combine this presentation, you would score certainly 450 plus. This is the agenda, and preferably 500. So this should be your agenda, and for these two things, for this agenda to be satisfied, you need both answer writing. In that you need to write what is being asked and then how to present your answers. Now regarding presentation, let's talk about something about presentation. See why I am discussing this, because this being your first test, if I let you know what are the demands of the answer writing, then you would certainly improve in your next test, right? और अगर अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे, you would be continuing
विद द सेम एजेंडा जो आपके दिमाग में है ना, आप वही मिस्टेक्स बार बार आप करते रहोगे, एंड वी सर्टेनली डोंट वांट दैट, बिकॉज अपने पास टाइम भी बहुत कम है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, याद भी बहुत करना है, रिवाइज भी बहुत करना है, राइट। सो नाउ प्रेजेंटेशन में आपको आंसर स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। फर्स्ट यू नीड टू राइट द कॉन्टेक्स्ट, और जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। Now you might have seen many toppers video जहां पे बोलते हैं you should start with a data, you should start with a report, you should start with a recent event, you should start with a current affair or whatever. But if for example the question is being asked that parliament accountability, the question is about parliament or parliament's role in accountability of executive and how it is being compromised. Now इसमें what many of us will do, or most of the students will do, they'll start with what is accountability, question hour, 0 hour and all those things. But why this question is being framed now? Because रिसेंटली गवर्नमेंट सस्पेंडेड द क्वेश्चन आवर। पैंडेमिक के बाद जो सेशन हुआ अभी हमारे पार्लियामेंट का, उसमें क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया था, एंड दैट वाज अ ह्यूज इशू। और वहां पे काफी बड़ा डिबेट भी हुआ था कि बिकॉज देयर वाज अ पैंडेमिक, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, गवर्नमेंट नीड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस दैट हाउ द लॉकडाउन वाज डन, इट वाज डिजाइन्ड, इट वाज एग्जीक्यूटेड, वेदर इट वाज गुड और बैड, क्या इकोनॉमिक के स्टेटस है, क्या एवरीथिंग वाज देयर। सो इन क्वेश्चन आवर, what is the main thing? Accountability, right? So if the question is on accountability, so you need to mention the context ki recently there was a suspension of question hour during the recent parliament session, which gives rise to debate of parliament's role in achieving the accountability, or reduction in parliament's role in maintaining the accountability. So need to maintain that context. So presentation की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले अपन को लिखना है कॉन्टेक्स्ट। आपको समझ में आ गया होगा, या इंट्रोडक्शन। देन योर मेन बॉडी। इन जीएस आंसर्स यू माइट सी वेरीड इंटरप्रिटेशंस ऑफ हाउ द बॉडी शुड बी। चाहे आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख लीजिए, चाहे आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। द थिंग इज यू शुड बी साइन पोस्टेड। साइन पोस्टेड मतलब अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे, देयर आर सिंपल क्वेश्चंस जहां पे यू कैन ब्रेक दोज थिंग्स इन सब हेडिंग्स। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग सब हेडिंग्स इन योर आंसर्स। नाउ व्हाट दिस विल डू, if you try to understand the psychology of an evaluator or per se, or what we say examiner, जो यूपीएससी में आपके पेपर चेक करेंगे, उसके लिए क्या होगा, एंड फॉर द रिकॉर्ड आपको अगर कोई भी डाउट है इस एक्सप्लेनेशन से लेकर और द कंटेंट से लेकर, आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डील विद देम, ठीक है। सो सब हेडिंग्स लिखना जरूरी क्यों है? सब हेडिंग्स लिखना जरूरी इसलिए है बिकॉज देयर आराम से 50, 55, 60 साल के वो लोग होते हैं, बैठ के चेक करते हैं, दे डोंट वांट टू टेक एनी, एंड व्हाई वुड दे टेक एनी व्हाट वी से स्ट्रेस ऑन देमसेल्व्स। सो इट इज योर ड्यूटी कि आप उनको बताओ कि भाई मैंने यहाँ पे ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर दिया है। सो बाय राइटिंग सब हेडिंग्स यू विल बी साइन पोस्टिंग हिम कि भाई यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, एंड सपोज द क्वेश्चन हैव 3 पार्ट्स, आपने 3 सब हेडिंग्स बना दी उसमें, सिंपल। सो आगे 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में 4, 4.5, 5 नंबर तो वैसे ही बन गए। एंड देन when you involve, जैसे सब हेडिंग आपने लिख दिया इसमें, and then if you involve some diagram, include some diagrams like this or like this or like this or like this, ठीक है। अगर आप कोई भी डायग्राम्स बना देते हो, so what is the purpose of these diagrams? First of all, it will save your time. अगर आपके पास if you are running short on time and if you have so many of questions left, so it will save your time. Then it will break the monotony. Because if you see, अगर आप खुद चेक करके देखना अपने पीयर ग्रुप में जो आंसर्स आप लिख रहे हो उनको चेक करके देखना, आफ्टर रीडिंग 2-3 आंसर्स, 4-5 आंसर्स, यू विल फील सेम चीज लिखी हुई है सबने, बिकॉज एवरीवन इज रीडिंग द सेम मटेरियल, everyone is reading the same thing, right? So you need to differentiate your answer, and differentiation में कुछ नहीं है। Normally what people will do, point में लिख देंगे 1, 2, 3, 4। इसको पढ़ना is difficult,
although this is in points, but इसको पढ़ना is difficult. But if you see इन्हीं 5 पॉइंट्स को आप इस डायग्राम में अगर लिख देते हैं, and let's say RTI, ठीक है, RTI के ऊपर आपने पॉइंट, RTI की यूटिलाइजेशन और RTI की इंस्ट्रूमेंटालिटी के ऊपर आपने बनाना है, तो यहां पे आप पॉइंट्स क्या लिखोगे? RTI की इंस्ट्रूमेंटालिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, ये सब है। उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनको आप यहां लिख दो। So rather than reading all these points, examiner will look at this diagram and he'll see कि भाई ये बंदा concisely काम करने में expert है, and he deserves to be an IAS officer and she deserves to be an IAS officer. Why? Because administration में if you see there is always a resource scarcity, and when you have resource scarcity you need to be efficient. यहां पे हमारे पास केवल 3 घंटे हैं, 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, अप्रोक्सीमेटली 5000 वर्ड्स से ऊपर हमें लिखना है। सो यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स, यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज अपने पास बहुत है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी नॉलेज अपन को नहीं होती है या कम होती है। एंड देन यू हैव टू मेक दिस पॉइंट कि आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, राइट? तो ये सब चीजें अपन ध्यान में रखेंगे, एंड व्हेन वी विल कीप these things in mind rather, so we will improve in our answer writing. Now let's start with the test. This is our JV's current affairs rounder 365 course. ये आप current affairs के लिए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस 26 of October 2020 से स्टार्टेड हो चुकी हैं वैसे। एंड देन द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है, उसके डिस्कशंस हो चुके हैं, पॉलिटी हो चुका है, इकोनॉमी हो चुका है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। Now let us start with the first question. Now I'll discuss. Now the model of this class would not be to read these PPTs, because ये तो आप खुद भी कर सकते हो। If you're investing 2 hours in this class, what should you get? आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए एनालिसिस, राइट? आपको पता चलना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, राइट? आपको पता चलना चाहिए हाउ टू स्ट्रक्चर, बिकॉज कंटेंट आप सबके पास है, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट। आपको क्या करना है? आपको फिल्टर करना है। और फिल्टर कब होगा? when you know how to structure, how to attempt a question, how to analyze. If you see Bose-Einstein condensate statistics पे क्वेश्चन था 2018 में, and no one had any idea कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, बट some people जो साइंस बैकग्राउंड से थे, जिनको थोड़ा बहुत Bose-Einstein condensate के बारे में पता था, they attempted that question and many of my friends even got through. So इससे हमें ये पता लगता है कि you don't need exactly कि exactly आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। Because prelims में और mains में यही वो है, difference है। Prelims and mains में this is the main difference, that prelims में you need to know exactly. यहां पे you can play in some questions, but do not play in such questions जिसमें आपको बिल्कुल हवा नहीं आ रही है। अगर बिल्कुल हवा नहीं आ रही है और आपने उसमें क्वेश्चन लिख दिया एंड और वो फर्स्ट से 5th क्वेश्चन के बीच में हुआ, इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन एग्जामिनर कि ये आदमी तो अभी से हवा दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जब क्या करेगा। सो डोंट डू दैट। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और उसमें फिर अच्छे नंबर लाने के लिए यू नीड टू नो दीज टूल्स, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा पूछा हुआ है, व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। सो वी ऑल नो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। अब आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रेशर ग्रुप, देन हाउ दे आर डिफरेंट। सो यू नीड, अब आपको यहां पे सब हेडिंग्स मिल रही हैं। फर्स्ट सब हेडिंग क्या है कि आपको प्रेशर ग्रुप के बारे में लिखना है। दूसरा, यू नीड टू कंपेयर देम विद द पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहां पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नहीं लिखना है, यू नीड टू have a comparison between these two, and then elaborate is the keyword. When elaborate is the keyword, you need a simple answer. कुछ नहीं, introduction आपको करना है, then you need to compare, and then you need to conclude, right? Illustrate वाले questions में बिल्कुल simple basic answer रखना है। So what are the pressure groups? Pressure groups आपको अगर पता है, they are the interest groups. Interest groups होते हैं जो कि सेम एजेंडा पे काम करते हैं। इफ यू सी फिक्की, एसोचेम, ठीक है, एंड आरएसएस, हिंदू महासभा, ऑल दीज आर दी प्रेशर ग्रुप्स। और ये प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस। अब आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कितने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। सो दे आर प्राइमरली इंटरेस्ट बेस्ड एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर प्राइमरली आइडियोलॉजी बेस्ड, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। देन सेकंड डिफरेंस इज प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट गो फॉर कैप्चरिंग ऑफ पावर, they do not go for capturing of power. What they do is just influence public policy. कैसे? What is the instrumentality? Interest articulation. All these keywords you should note. ठीक है, ये अपने नोट्स में लिख लेना, because these are the keywords that you need to write in your exam. Interest articulation, political mobilization, ठीक है, bridge civil society and government. अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जाके प्रधानमंत्री जी से बोलूंगा कि सर मुझे ये काम करना है, नहीं है। व्हाई? बिकॉज चैनल नहीं है बीच में कोई, तो वो चैनल कौन प्रोवाइड करते हैं? प्रेशर ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल इफ यू सी ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट, ऑल दीज थिंग्स। जैसे स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे एबीवीपी है, ठीक है, एसएफआई है, ठीक है, ऑल दीज आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। सो व्हेन यू हैव अ कॉमन इंटरेस्ट विद सम पीपल, यू कैन क्लब देम एंड मेक अ इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। एंड देन first it is an interest group, then when it tries to influence the public policy by interest articulation, political mobilization, bridging the civil society and government gap, तो इससे क्या होता है कि because of voting procedure, जब तक लोगों की डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, तब तक लोग वोट नहीं करेंगे। सो इसलिए इनका इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी पे काफी ज्यादा रहता है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट एंड इन वेरी लेस वर्ड्स। आपको बहुत क्लियर अपना पेपर रखना है। अगर आपको लेट्स सपोज 150 वर्ड्स हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 150 वर्ड्स के अंदर अपन अपना आंसर खत्म कर दे, ठीक है। डू नॉट गो फॉर दिस मिथ कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है, बिकॉज ज्यादा लिखने के चक्कर में यू मेक योर पेपर क्लमजी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके मार्क्स के लिए, राइट। मूविंग ऑन, सो प्रेशर ग्रुप्स ये हैं, दीज आर द इंटरेस्ट ग्रुप्स, मेंबर्स उनकी शेयर्ड कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लेम्स होते हैं, एंड सोशल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन, ये सब वो करते हैं। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन का जो प्रेशर ग्रुप था, इसकी वजह से क्या पब्लिक पॉलिसी में चेंज आया था? लोकपाल को लाया गया था, लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ था, राइट। सो पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंस हमने देख लिया है कि आइडियोलॉजिकल लाइंस पे होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज गो फॉर पावर कैप्चर, प्रेशर ग्रुप पावर कैप्चर नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद देयर इज अनदर डायमेंशन कि हाउ प्रेशर ग्रुप्स कैन चेंज इनटू पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज change into pressure group. If you see Shiv Sena, it's a classical example. Initially it was a pressure group, then it changed into a political party, right? So this is the main comparison, that it aims at exerting influence, this aims at acquiring power. It can be informal, it can be formal, it only person with similar value, belief and status can join, and similar political ideology आपकी सेम होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, एक प्रेशर ग्रुप है, उसमें एक आदमी है, एक बिजनेस प्रेशर ग्रुप है लेट्स सपोज, तो बिजनेसमैन 1 सपोर्ट्स लेट्स सपोज पार्टी ए, बिजनेसमैन 2 सपोर्ट लेट्स सपोज पार्टी बी। सो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम है। सो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो-इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया? नाउ डू यू थिंक वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एनालिसिस करना है। डू यू थिंक वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एनालिसिस करना है। इसमें पूछा है डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी सो एंड सो एंड सो, सो डेमोक्रेसी यस, सो एंड सो एंड सो, डेमोक्रेसी नो, सो एंड सो, एंड हाउ इट कैन बी बैलेंस्ड, ठीक है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब ये जो पिछले वाले क्वेश्चन थे इल्यूसिडेट वाले, इसमें कोई वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन लिखने की जरूरत है बस इसमें, ठीक है। जैसे कि बार्गेनिंग पावर, कॉम्प्लेक्सिटी, प्लूरलिस्टिक नेचर, ये सब आप सिंपल आप इसमें वो लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, बट इसमें आपको एक वे फॉरवर्ड देने की जरूरत है कि यस डेमोक्रेसी कैन address socio-economic and political problems, but there are some challenges, that is how it is not
satisfying the demand or how it is not addressing the political problems or socio-economic problems, then you need to present a way forward, because एक administrator का काम क्या होता है, आंसर राइटिंग में you always need to focus on how an administrator would answer this question. वो पहले ये देखेगा कि हाँ भाई क्या क्या अपने पास अवेलेबल है, what is available, क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या काम नहीं हुआ है, राइट, नॉट डन, क्या क्या काम नॉट डन है, ठीक है, इसको क्या करने, इसको कैसे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड, ठीक है. तो इस तरीके से आपको अपना आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. सो डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया? अभी क्वेश्चन में ये सिंपल सा पता है, ये बोल रहा है कि एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. सो इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास भी है कि अगर ऐसा होता तो एवरी कंट्री वुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नहीं है ना ऐसा, राइट. इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी सर्टेनली कुछ एक चीजों में बेहतर करती है, कुछ एक चीजों में इट इज नॉट दैट गुड, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू इंप्रूव, कंटिन्यूअसली इंप्रूव. एंड क्रिटिकली एनालाइज है इसका कीवर्ड. क्रिटिकली एनालाइज में आपको यही करना है, पहले आपको फॉर के आर्गुमेंट लिखने हैं, फिर अगेंस्ट के आर्गुमेंट लिखने हैं, फिर वे फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है. सो आप बता सकते हो डेमोक्रेसी क्या है. अब्राहम लिंकन की जो फेमस डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. देन डेमोक्रेसी कैन एड्रेस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस. कैसे? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी नीड टू ड्रॉ डायग्राम्स, राइट. सो इफ यू लेट्स से आपके पास बहुत कम समय है, देन यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स. मोर अकाउंटेबल सिटीजन, डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मोर ट्रांसपेरेंट, इंस्पायर वुमेन फॉर देयर स्ट्रेंथ, राइट. आप इसको एक डायग्राम में सिंपल सा बना सकते हो. लेट्स सपोज ये आपने लिखा डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर आपने इसको इस तरीके से बना दिया, ये डेमोक्रेसी आपने लिखा. उसके बाद ये आपने बना दिया सोशियो इकोनॉमिक. सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को वो कैसे हैंडल करता है, पॉलिटिकल चैलेंजेस को वो कैसे हैंडल करता है. उसके बाद आपने ये डब्बे बनाए. अब इससे आपकी स्पेस भी कवर हो रही है, क्लटर्ड भी नहीं लग रहा आपका पेज, और आप कंटेंट भी सारा लिख रहे हो विदाउट राइटिंग दिस मच ऑफ वर्ड्स, राइट. सोशियो इकोनॉमिक कैसे करता है, राइट. वो ये पहले पॉलिटिकल देख लेते हैं. डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटरी बन जाती है, ठीक है. पावर टू मासेस, पावर टू मासेस, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स. पॉलिटिकल एजुकेशन या सिविक एजुकेशन जरूरी है, ठीक है. उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक को कैसे वो करता है, जो कास्ट बैरियर्स हैं या क्लास बैरियर्स हैं उनको ये खत्म करता है, राइट. पॉलिटिकल, ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंप्रूव करता है. ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन. नाउ इफ यू सी, है कुछ नहीं ज्यादा, आपको बस ये, दिस इज द फॉर्मेट जब आपको, आपके पास टाइम कम हो. अदरवाइज प्रेफरेबली आपको एक पूरा आंसर लिखना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज 3 घंटे के पेपर में जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम ही होता है, राइट. सो डेमोक्रेसी कैन एड्रेस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस बाय, एंड देन इट इज मोर ट्रांसपेरेंट, ठीक है. इट इज मोर ट्रांसपेरेंट. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देन करप्शन कम होता है, ठीक है. इंफॉर्मेशन मिलती है सारी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाती है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाती है, राइट. ऑल दीज थिंग्स. देन इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है कि इट इज लेस एफिशिएंट बिकॉज इट इज मोर टाइम टेकिंग. अब 2 लोगों को डिसीजन लेना है, इट कैन बी टेकन इन जस्ट 2 मिनट्स, बट अगर आपको 2000 लोगों से डिसीजन करवाना है, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. उसके बाद इन 2000 लोगों में से 400 लोग एक बात कह रहे होंगे, 200 लोग एक बात कह रहे होंगे, फिर 600 लोग अलग बात ही कह रहे होंगे. सो यू नीड टू क्रिएट अ कंसेंसस. उस कंसेंसस में टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी और डिसीजन पैरालिसिस. इसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंटल डेफिसिट, डेवलपमेंटल डेफिसिट, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है. देन उसका सोशल इंपैक्ट आता है. क्या होता है, इफ यू सी, कम्युनलाइजेशन होता है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, रीजनलिज्म होती है, जिससे कि सोशल इश्यूज में क्या है, फॉल्ट लाइंस इन सोसाइटी, फॉल्ट लाइंस जो होती है सोसाइटी की वो इंक्रीज हो जाती हैं. देन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आज इलेक्शन है, कल नो कॉन्फिडेंस हो गया, परसों फिर तीसरी सरकार आ गई, राइट. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज बढ़ती हैं,
राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज कैसे? बिकॉज जो पॉलिटिकल नेक्सस जो होता है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस जो होता है, वो डेमोक्रेसी की वजह से, बिकॉज यू नो ब्यूरोक्रेट्स को भी ये रहता है कि भाई अभी इसकी सरकार है, कल को उसकी सरकार आएगी, इफ वी आर नॉट डूइंग वर्क एज पर देयर डिमांड, तो पनिशमेंट पोस्टिंग, प्लम पोस्टिंग, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, करप्शन काफी होता है डेमोक्रेसी में। इफ यू सी इलेक्शन से पहले वोट्स बिकते हैं पैसों से, बाटली से, राइट। सो इन सब चीजों से ये सब चैलेंजेस हैं। नाउ हाउ कैन इट बी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीज द लिटरेसी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। जब तक ये दोनों चीजें नहीं इंप्रूव होती तब तक डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फंक्शन। अगर आप पीएसआईआर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा जेएस मिल एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे, ये आपको एथिक्स में भी इनको पढ़ना होता है। तो जेएस मिल एक बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर थे, उन्होंने यही बोला था कि डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी सोसाइटी, यू नीड अ डेमोक्रेटिक कल्चर। डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब है, इफ यू सी इंडियन सोसाइटी वाज अ फ्यूडल सोसाइटी, राइट। फ्यूडल सोसाइटी के ऊपर आपने एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को सुपर इंपोज कर दिया, ठीक है। सो देयर इज दिस मिसमैच कि मेंटालिटी अभी भी फ्यूडल है, हमको जमीन चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और उसके बाद फिर हम कास्ट में बिलीव करते हैं, रिलीजन में बिलीव। इट्स नॉट दैट कि दे आर बैड, बट इट्स दैट कि उनको गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो सोसाइटी अभी भी हमारी फ्यूडल माइंडसेट की है, बट हमारा सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक हो गया है, जिसकी वजह से एक मिसमैच होता है। और इसी मिसमैच की वजह से हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो इतनी मेच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। एंड बट इफ यू सी यूएसए या इफ यू सी यूके, इनके यहां फर्स्ट इनकी जो सोसाइटीज थी वो डेमोक्रेटिक बनी, फर्स्ट इनकी सोसाइटीज डेमोक्रेटिक बनी, देन ऑर्गेनिकली इनके सिस्टम डेमोक्रेटिक बने, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। एंड इस वजह से देयर इज नो मिसमैच। तो इफ यू सी इन वेस्टर्न कंट्रीज आपको जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो कम मिलेगा। इसका रीजन ये भी है कि वहां की सोसाइटीज आर होमोजेनस और हमारी सोसाइटी इज हेटेरोजेनस, तो वी ऑब्वियसली हैव रीजनल एस्पिरेशंस और सेक्शनल एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। बट एक रीजन ये भी है कि वहां पे द प्रोसेस वाज ऑर्गेनिक, यहां पे प्रोसेस वाज नॉट ऑर्गेनिक। इसी वजह से इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अनलेस अंटिल कि लोग जो सिविल सोसाइटी है वो स्ट्रेंथन नहीं होगी, तब तक डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अ पनीशिया फॉर एवरी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इसमें आपको डिफरेंस बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंसेस बिटवीन इक्वालिटी, लिबर्टी एज स्टेट्स ऑब्जेक्टिव। अभी हमें पता है कि हमारे यहां प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सबकी लिबर्टी है, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये सब है, ये हमारे प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इसी वजह से इसमें स्टेट का रोल काफी ज्यादा है, बिकॉज प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो अभी हमें इसको एनालाइज करना है। क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी एज स्टेट्स ऑब्जेक्टिव। अब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? इक्वालिटी जो है वो क्या है कि किसी सब जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यहां पे किसी को भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, नो प्रिविलेजेस फॉर एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, राइट। उसके लिबर्टी, लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। जो भी कोई भी पॉलिटिकल आपके मान लो लेट्स सपोज अथॉरिटेटिव रिजिम है, अथॉरिटेटिव रिजिम है, जैसे फॉर एग्जांपल डीपीआर है, नॉर्थ कोरिया जिसको हम कहते हैं, या चाइना है, वहां पे देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, सो योर लिबर्टी गेट हैम्पर। सो यहां पे लिबर्टी अब इफ यू सी वेयर इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन कमिंग फ्रॉम? इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी सेक्शन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब ऑर्गेनिकली तो हमारी सोसाइटी इस तरीके से डिजाइन नहीं है, बिकॉज किसी के पास लैंड ज्यादा है, किसी के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, किसी के पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है। अगर इनको इक्वलाइज करना है सो वी नीड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, एंड इफ वी नीड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आता है स्टेट का रोल। एंड व्हेन स्टेट विल इंटरवीन, लेट्स सपोज लैंड सीलिंग एक्ट था, लैंड सीलिंग एक्ट था और जमींदारी एबॉलिशन एक्ट था, राइट। सो यहां पे क्या है? कैन आई क्लेम दैट
this land, this 100 hectare land belonged to me. This was product of my labor. मेरी inherited property थी and no one had any claim over that land. But because of Land Ceiling Act and because of Zamindari Abolition Act, my liberty, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, ये मेरे को रेस्ट्रेन किया ना उन्होंने कि आप बस इतनी ही लैंड रख सकते हैं, आप पूरी लैंड नहीं रख सकते. सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ये कॉन्ट्राडिक्शन पे आपको फोकस करना है कि कैसे ये दोनों डिफरेंस हैं और कैसे इनको हम बैलेंस कर सकते हैं. राइट, स्टेट ऑब्जेक्टिव. अब इसको बैलेंस करने का मतलब क्या है, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हार्म प्रिंसिपल से. व्हाट इज दिस हार्म प्रिंसिपल? हार्म प्रिंसिपल इज जब तक आपके कोई एक्शन किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तब तक आपके पास लिबर्टी है कि आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 हेक्टेयर की जमीन है और उस वो जो 100 हेक्टेयर की जमीन है और जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहां पे क्या है, इसको ऐसे समझते हैं. लेट्स सपोज इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी इज नॉट देयर. पहली बात, लेट्स सपोज इनइक्वालिटी नहीं है तो आप 100 हेक्टेयर रखो, 1000 हेक्टेयर रखो, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, बिकॉज आपके 100 और 1000 हेक्टेयर रखने से किसी और का हक नहीं मारा जा रहा. राइट, किसी और की अपॉर्चुनिटीज को रिड्यूस नहीं किया जा रहा. लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो फिर आपका इतना सारा रिसोर्स अमास करना डेफिनेटली विल लीड टू वायलेशन ऑफ समवन एल्सेस राइट. और इसी वजह से यू नीड अ बैलेंस. तो वो बैलेंस कैसे होता है, हार्म प्रिंसिपल से होता है. राइट, तो इस क्वेश्चन में यही आपको मेन करना था, क्रिटिकली एग्जामिन करना था, इक्वालिटी और लिबर्टी. स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस बनाना. स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस बनाना. तो आपको बैलेंस बनाना है बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वालिटी. राइट, ये तो बेसिक स्लाइड्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो. मैंने आपको मेन तो बता दिया है कि लिबर्टी की डेफिनेशन ये होती है और कैसे ये दोनों आपस में आते हैं. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, कि अगर आप ये बोलो कि दिस इज द डिफरेंस बट वे फॉरवर्ड क्या है, इक्विटी. राइट, इक्विटी और इक्वालिटी में देयर इज अ डिफरेंस. इक्वालिटी का मतलब है ट्रीटिंग एवरीवन अलाइक, एवरीवन अलाइक. अब मैं आपको ये बोलूं, लेट्स सपोज एक पर्सन ए है जो कि फुल्ली फिट है, एक पर्सन बी है जो कि एक पीडब्ल्यूडी है. लेट्स सपोज उनके पैर में कोई इशू है. राइट, और इनको रेस करनी है और सेम लाइन मैंने इनको दे दी. ये इक्वालिटी तो है लेकिन इक्विटी नहीं है. आपने वो डायग्राम देखा होगा कि दिस इज अ वॉल और यहां पे एक लंबा आदमी है जिसको भी इतना बड़ा दिया है, एक छोटा आदमी है थोड़ा सा, इसको भी हमने इतना ही बड़ा दिया और एक बिल्कुल छोटा आदमी है, इसको भी हमने इतना दिया. दिस इज इक्वालिटी. बट इक्विटी क्या होगी, इस लंबे आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं है. राइट, ये ऑलरेडी इतना लंबा है कि इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है. इसको एक बॉक्स की जरूरत है यहां पे आने के लिए, इसके सेम लेवल पे आने के लिए, और इसको 2 बॉक्सेस की जरूरत है इन लोगों के सेम लेवल पे आने के लिए. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. ये डायग्राम आप अपने एथिक्स के पेपर में भी यूज कर सकते हो. राइट, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज डू आस्क देम. अभी तक कोई कमेंट दिख नहीं रहा है मुझे. ओके, चलिए ये हमने देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी आपको ये बताना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी. अब इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दैट यू नीड टू डिफाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी. राइट, एक तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हो सकता है. दूसरा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, आप जुडिशरी इटसेल्फ की इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताएं. जुडिशरी का मेन काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करना, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट को मेंटेन करना. इन सब चीज के लिए हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. सो दिस कैन बी लाइक 25-30 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन इज इनफ, जिसमें आपने सारे कीवर्ड्स यूज कर दिए कि जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट which aims at maintaining constitutionalism, rule of law, protection of rights, and hence to achieve that role or to perform its role better, it needs accountability as well as independence. ठीक है, ये दोनों चीजें, या it needs independence as well as accountability.
नाउ डिफरेंस क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यू नो कि इनकी अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो कोलिजियम सिस्टम से होते हैं, हालांकि इसमें इटसेल्फ देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंसी, बट इट इज एन मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। उसके बाद जजेस का कंडक्ट यू कैन नॉट डिस्कस, देन इनका जो रिमूवल होता है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जजमेंट्स विदाउट fear of favor, ठीक है। सो ये क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड जस्टिस। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हर क्वेश्चन में कोट करने हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज ही नहीं पता है और आप लिखे जा रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। आपको कनेक्ट करना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों जरूरी है, बिकॉज जस्टिस इज द मेन व्हाट वी से प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस मेंटेन करने के लिए वी नीड एन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड देन व्हाई द अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी? बिकॉज लेजिटिमेसी। जब तक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हाउ इज इट एबल टू रूल? वो कैसे रूल कर रही है? इट कैन रूल ओनली व्हेन वी गिव देम द कंसेंट टू रूल आवरसेल्व्स, राइट? तो इसका मतलब यह हुआ कि वी एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी एंड दिस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड लेजिटिमेसी, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आपके फादर, आपके मदर है, राइट, वो आपको कुछ बोलते हैं, सो आपकी शायद गलती भी नहीं है, लेकिन वो आपको डांट रहे हैं या आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी बात सुनते हो, बिकॉज दे हैव अ लेजिटिमेट क्लेम ऑफ पावर ओवर यू। लेकिन अगर कोई पड़ोसी वाला अंकल बोल रहा है तो आप अबे पागल है ये तो, ऐसे बोल के निकल जाते हो, राइट। सो क्योंकि वहां पे आपने उसकी लेजिटिमेसी नहीं मानी है और आपके पेरेंट्स की लेजिटिमेसी आप मानते हो, दैट इज व्हाई दे कैन एक्सरसाइज पावर ओवर यू। सो अगर जुडिशरी को एक्सरसाइज करनी है पावर, सो इट कैन ओनली एक्सरसाइज पावर व्हेन इट हैज लेजिटिमेसी। और लेजिटिमेसी के लिए क्या जरूरी है? अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस, राइट। अगर आप किसी को पैसे देते हो, राइट, लेट सपोज आपने 1000 रुपए दिए, आप किसी को भी तो उठा के 1000 रुपए नहीं देते ना, जब तक वो सामने से आपको ये नहीं बताता कि भाई मैंने 1000 रुपए में से 100 रुपए यहां खर्च कर दिए, 500 रुपए यहां खर्च कर दिए, या मैंने तेरे लिए ये 600 रुपए का ये कर दिया। सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस। ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी से रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को बताओगे। व्हेन यू विल यूज दीज कीवर्ड्स ना, जुडिशियल, जस्टिस एंड लेजिटिमेसी, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नाउ डिफरेंशिएट कैसे करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? The concept of judicial independence is not clearly defined. First of all तो यही दिक्कत है हमारे यहाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें वेग हैं। Now but it means freedom from bias or influence, right? अभी रिसेंटली if you see जुडिशरी के साथ काफी सारे इश्यूज हैं। आगे एक जुडिशियल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन भी है, जुडिशरी के साथ काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे if you see politicization of judiciary, politicization of judiciary। So आपको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जज जो हमारे फॉर्मर सीजीआई थे, उनको राज्यसभा की सीट मिली है। सो इट क्रिएट्स व्हाट वी से अ क्वेश्चन इन आवर माइंड्स दैट उनके जो जजमेंट्स थे वो क्या वो सही में इंडिपेंडेंट जजमेंट्स थे, या व्हाट एग्जांपल्स और प्रेसिडेंट इट वुड सेट फॉर upcoming CGIs और upcoming Supreme Court judges और for that matter district judges and high court judges, right? So ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। और इनका मतलब क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब ये आपको पता है, और अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको लिंक करके बता दिया है जस्टिस और लिबर्टी, जस्टिस और लेजिटिमेसी से। Next question. Supreme Court in the recent verdict right to freedom of religion has pronounced that right to freedom of religion, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप इसको कनेक्ट करिए आर्टिकल 25 से, कैन नॉट बी अलाउड टू डिनाई राइट ऑफ इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब 14 to 18 एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, लाइफ ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी, आर्टिकल 21। ऐसे इस तरीके से आपके दिमाग में आर्टिकल्स पॉप होने चाहिए, राइट। सो आपको यह बताना है कि हाउ आर्टिकल 25 इज इन what we say contradiction with article 14 and article 21, right to equality and right to liberty, life of liberty and dignity। ये कैसे हैं? So सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली if you see सबरीमाला जो वर्डिक्ट हुआ था, सबरीमाला जजमेंट जो था, देन ट्रिपल तलाक जो शायरा बानो का जजमेंट था, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन क्या कहता है
कि एवरी रिलीजन और एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू कंडक्ट इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स, राइट। तो ये आर्टिकल 25 और 26 में यही है। और जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, इंडिविजुअल राइट और डिग्निटी है, वो कैसे हैम्पर होता है। इफ यू सी सबरीमला में क्या हुआ था, सबरीमला में ये था दैट the women from the age of 15 to 49 which are in menstruating age, menstruating जो उनका पीरियड होता था, उसमें because of their menstruation of this biological fact they were not allowed to go inside the temple. So this was considered as a expression of untouchability or manifestation of untouchability, right? And article 17 हमारे यहाँ untouchability को abolish करता है, right? So this was the main contradiction कि and then the second was is gender justice था, right? gender justice था। the main problem क्या है, main problem है modernity, modernity versus tradition। आपको इस क्वेश्चन को इस थीम पे सॉल्व करना है that how there can be a reconcilement between modernity and tradition। तभी आपको इसमें अच्छे से आर्गुमेंट आप इसमें कर पाओगे कि should it be allowed to trump individual rights? Why? Because if you see हमारे यहाँ जो रिलीजन है या कल्चर है, ये जो कल्चर है, they have been evolving from thousands of years, right? मतलब 5000 साल पुरानी संस्कृति है, सनातन धर्म है, right? all these things. So and if you see there is a sanctity of a place. If you see चर्च में you can't be very loud, आप चिल्ला नहीं सकते चर्च में, या अगर आप मॉस्क में जाओगे तो वहां आप चिल्ला नहीं सकते। लेट्स सपोज अ न्यूट्रल प्लेस, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हालांकि मंत्री चिल्लाते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन एक डेकोरम होता है किसी भी जगह का। इफ यू आर गोइंग इनटू एन इंटरव्यू, आप उसमें व्हाट वी से नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जा सकते, राइट? आपको फॉर्मल ड्रेसअप होना पड़ेगा। सो किसी भी जगह की एक सैंक्टिटी होती है, उस सैंक्टिटी को आप मेंटेन। अब इफ यू सी दिस इशू वाज हाईलाइटेड कि सबरीमला में वुमेन नहीं जाती, बट देयर आर मेनी टेंपल्स इन दिस कंट्री जहां पे मेन आर आल्सो नॉट अलाउड, राइट? सो वुड दैट बी कंसिडर्ड एज अनटचेबिलिटी? नहीं। व्हाई? बिकॉज वहां की सैंक्टिटी है। सो दिस द मेन डिबेट इज हाउ टू मेंटेन दिस सैंक्टिटी विद द इंडिविजुअल इक्वालिटी एंड लिबर्टी, राइट? सो आपको इसमें दो पार्ट बनाने हैं। पहला पार्ट जहां पे आप ये बताओगे कि बिकॉज इंडिविजुअल सैंक्टिटी, किसी भी प्लेस की एक अपनी सैंक्टिटी होती है, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट राइट, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है उस कम्युनिटी का, राइट? सो ये आपको देखना है। सो ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड रूल्स ऑफ साइट, ये तीन चीजें हैं जिससे अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, और उनको अपनी जो तरीके हैं उनको फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए। बट इक्वालिटी शुड ट्रायम्फ ओवर रिलीजन, बिकॉज ये जो रिलीजन है ये बहुत पुरानी चीजें हैं, एंड वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न डे एंड एज, मॉडर्न डे 21st सेंचुरी, ठीक है? एंड द चेंज, व्हाट वी से, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। सो इसमें आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि इट्स नॉट ऑलवेज राइट टू फॉलो द ट्रेडिशन, बिकॉज वी नीड टू चेंज द ट्रेडिशंस, बिकॉज अब हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देवदासी वाज कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग, बट अभी इस समय इफ यू सी देवदासी वुड बी कंसिडर्ड एज समथिंग नॉट दैट, व्हाट वी से, उसको उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर जजिंग दैट फ्रॉम 21st सेंचुरी स्टैंडर्ड। तो आपको अपने आंसर में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, वो मेजरली हाईलाइट करना है, ठीक है? सो सेकंड इज इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, दीज आर द मॉडर्न वैल्यूज, एंड सिंस वी आर लिविंग इन मॉडर्न डे एंड एज, सो वी कैन नॉट, व्हाट वी से, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? सो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसका वे फॉरवर्ड ये है, द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन नीड टू बी डिस्कार्डेड इन टुडेज डे एंड एज। व्हाई? बिकॉज हमारे यहां अब जो पूरे वर्ल्ड में जो लिबरल ऑर्डर है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको हम उदारवाद कहते हैं हिंदी में, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन राइट्स बिकॉज इट हैज मेड ह्यूमंस एज द सेंटर। तो कोई भी चीज है, वेदर इट इज रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम, all these things are a means only, they are not the end, they are the means for an individual to have a good life, right? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेन एजेंडा है वो इंडिविजुअल है, right? It's not the main issue here is कि इंडिविजुअल को गुड लाइफ
जीने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। दीज आर नॉट प्राइमरी। रिलीजन की वजह से आप इंडिविजुअल पे व्हाट वी से रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते। इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करना होगा इन सब चीजों को, बिकॉज वी आर लिविंग इन दैट डे एंड एज, राइट। सो ये सब आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। Now we have already discussed जुडिशरी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो इसमें पूछ रहा है मेजर एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन जुडिशियल सिस्टम। अब जब ये पूछ रहा है व्हाट कैन बी द मेजर एरियाज ऑफ रिफॉर्म, तो इससे पहले लॉजिकली आप ये सोचो कि जब आप किसी को बताओगे कि भाई ये वाले एरियाज में रिफॉर्म जरूरी है, तो उससे पहले आप ये भी तो बताओगे कि वाई, और इस वाई को बताने के लिए आपको क्या डिस्कस करना पड़ेगा, चैलेंजेस, जो हमारे प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, राइट। तो इसके लिए आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो, बिकॉज सी जो मेन डिमांड है वो क्वेश्चन की एक तो ये है और एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वो करना है, एंड दिस इज अ 150 वर्ड आंसर। सो आप इसमें बहुत ज्यादा नहीं दे सकते इस वाले पार्ट को। सो व्हाट वी कैन डू इज प्रेजेंट चैलेंजेस, मतलब एक तो इंट्रोडक्शन लिख दिया अपन ने, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जुडिशरी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, एंड हेंस इट रिक्वायर्स टू बी एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव। सो बट देयर आर सम प्रेजेंट चैलेंजेस, जैसे कि आप ये कह सकते हो, इसको एक डायग्राम से आप बता सकते हो व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस, ये आप बता सकते हो ह्यूज डिलेज, ह्यूज बैकलॉग, ठीक है, ह्यूज वैकेंसीज, वैकेंसी, then non-transparency, then judicial corruption, judicial corruption। आपने अभी let's suppose this is your page, right? आपने 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा, इतनी सी ही जगह लेगा ये आपका, राइट। सो दिस वुड बी योर हाफ अ पेज। उसके बाद आपका हाफ पेज है, और सी जो मेन इंप्रेशन बनता है ना एग्जामिनर पे, वो इस वाले फेज में बन लिया होता है। उसके बाद तो फिर वो खाना पूर्ति वाली चीज हो जाती है कि उसको पढ़ना है, उसकी ड्यूटी है, इसलिए वो पढ़ता है, नहीं तो उसको यहीं से पता लग जाता है। अगर आपने यहीं पे अपना इंप्रेशन बना लिया कि हाँ भाई बंदा लॉजिकली सोचने वाला है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपने प्रेजेंट चैलेंजेस बताए, देन ये जो चैलेंजेस बताए यही तो है वो मेजर एरिया जिनमें रिफॉर्म्स चाहिए, राइट। इन्हीं के रिफॉर्म्स को आप लिख देंगे। देन एग्जामिन द आइडिया ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो जुडिशियल सर्विसेज आर्टिकल 312 जो है हमारा, वो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताता है। सो एग्जामिन जहां पे आपको करना है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ जुडिशियल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा बैकलॉग है हमारे पास, राइट। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, they are not functioning well। इन सबको सॉल्व कैसे करेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से। बट देयर आर आल्सो चैलेंजेस इन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। क्या चैलेंजेस हैं भाई? सबसे पहले तो लिंग्विस्टिक चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद फेडरल चैलेंज है। फेडरल चैलेंज कैसे? यू नो दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है हमारी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, वो स्टेट के अंदर होती है। इफ यू सी स्टेट्स जो है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है। इसका मतलब स्टेट जो है खुद अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को व्हाट वी से रिक्रूट करता है। लेकिन अब यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे क्या होगा, सेंटर का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ऑब्वियसली सेंटर कंडक्ट कराएगा, यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, या कोई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी कंडक्ट कराएगी, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होगा और उसके बाद उनको कार्डर्स में बांटा जाएगा। सो दीज आर द चैलेंजेस कि भाई अब मान लो कोई दिल्ली का आदमी है और उसको बंगाल में आपने भेज दिया, बंगाली उसको आती नहीं, वो क्या करेगा वहां पे, राइट। दूसरी इशू क्या है कि ट्रेडिशन का इशू है। इफ यू सी, जब ब्रिटिश टाइम पे भी क्या होता था कि जो यूरोपियन जजेस थे, दे वर असिस्टेड बाय अ काजी एंड अ पंडित, जो उनको उनके जो पर्सनल लॉज थे उनको एग्जीक्यूट करने में मदद करते थे। सो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, लेट सपोज दिल्ली में, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो इंडिया में जब तक हम एक दूसरे की प्लेट से खाने लेते हैं हमको मजा नहीं आता। वी आर गोइंग इनटू अ रेस्टोरेंट, हमने 4 अलग अलग डिशेज ऑर्डर कर दी है, लेकिन हमको दूसरे की प्लेट से खाना जरूरी है, तभी हमें मजा आता है खाने में। बट इफ यू सी इन यूरोप, इफ यू सी इन यूएसए, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन इल कल्चर, या व्हाट वी से, वो उसको हम अच्छा नहीं मानते। दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मैनरफुल थिंग टू डू। सो इसी वजह से देयर आर कल्चरल डिफरेंस। तो राजस्थान में लेट सपोज मेरी जबान की बात है,
और हो सकता है कि किसी और स्टेट में जबान की उतनी बात ना हो। तो जो लोकल कंडीशंस हैं उनको समझना जरूरी है फॉर अ जज टू डिसाइड सीरियसली अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड देन ट्रेडिशन के ऊपर भी जस्टिस होती है। सो दीज आर द मेन चैलेंजेस। देन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई उनका लिंग्विस्टिक टेस्ट ले लो आप एक। लेट सपोज कोई दिल्ली का आदमी है, तो बंगाली भी तो रहते हैं दिल्ली में, तो लेट सपोज वो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा था और उसको बंगाल में जाना है, उसका बंगाली का टेस्ट ले लो। किसी को राजस्थान में जाना है, हिंदी का टेस्ट ले लो। तमिलनाडु में जाना है, तमिल का टेस्ट ले लो। सो दिस कैन बी अ वे फॉरवर्ड, राइट। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। देन व्हाट इज राइट टू बी फॉरगॉटन? ये जो हमारा है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मैं क्या लिखा हूं? फ्राई। मुझे भूख लग रही है, आई थिंक फ्राइज खाने का मन है। अब मैंने प्राइस लिख दिया क्योंकि फ्राइज का प्राइस भी तो होता है। राइट टू प्राइवेसी, ओके। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हमें पता है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, right? So what is right to be forgotten? Define how this concept has been evolved in India in the purview of right to privacy versus right to information. यहां पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिख रहा है? यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है बिटवीन इंडिविजुअल गुड वर्सेस पब्लिक गुड। थोड़े दिन में मेरी भी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने काफी टीचर्स की राइटिंग देखी है, उनकी बोर्ड पे बड़ी अच्छी राइटिंग आती है, बट मेरी तो बहुत खराब राइटिंग आती है, जाने क्यों। पर देख लेंगे आप, धीरे धीरे आप और मैं साथ में पढ़ेंगे तो राइटिंग भी बढ़िया हो जाएगी। तो इंडिविजुअल गुड वर्सेस पब्लिक गुड, इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो आपको इसमें देखना है। एंड देन राइट टू फॉरगॉटन आपको सिंपल बताना है। अगर आपने पढ़ा हो तो जीडीपीआर जो था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजिम, यूरोपियन यूनियन का, उसमें राइट टू फॉरगॉटन दे रखा है। राइट टू फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक डेटा प्रिंसिपल हूं, डेटा प्रिंसिपल मतलब, अब डेटा प्रिंसिपल कहते हुए बड़ा अजीब लगता है बिकॉज अब इंसान को एक फाइल बना रहे हैं, बट फिर भी लेट्स सपोज डेटा प्रिंसिपल मैं हूं और मेरा डेटा पब्लिक डोमेन में है। या तो उसका ओरिजिनल पर्पस खत्म हो गया है, या मैंने कंसेंट विथड्रॉ कर लिया है, मैंने, ठीक है, या वो लॉ के ही अगेंस्ट है। हाथ से मिटाने की आदत है मेरे को, ठीक है। सो इन तीनों कंडीशन में वन कैन आस्क दैट मेरा डेटा भाई पब्लिक स्पेस से आप बिल्कुल हटा दो। आई वॉन्ट माई इंफॉर्मेशन टू बी कंप्लीटली इरेज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पब्लिक स्पेस। सो दिस इज राइट टू बी फॉरगॉटन। बट इंडिया में अभी राइट टू फॉरगॉटन नहीं है। वाई? बिकॉज अभी तक हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन रेजिम ही नहीं है। सो जस्टिस BN श्री कृष्णा थे हमारे, जस्टिस साहब BN श्री कृष्णा जी, ठीक है। इन्होंने ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया था और उसमें इन्होंने राइट टू फॉरगॉटन की बात हल्की सी की थी, राइट टू इरेज डेटा। तो लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे राइट टू फॉरगॉट पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ था। उसमें ये हुआ था कि अगर आप ये आपका डेटा डिस्क्लोज करना बंद किया जा सकता है लेकिन इरेज नहीं होगा डेटा, ठीक है। तो इसकी ये इवोल्यूशन हुई है, देख लेते हैं एक बार। ये मैंने आपको बता दिया है। सो राइट टू बी फॉरगॉटन डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये जो ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल था इसके पे एक सेक्शन था, बट द प्रपोज्ड बिल डज नॉट प्रोवाइड अ राइट टू इरेज डेटा एज पर्सनल डेटा, गिव डेटा प्रिंसिपल अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर जो था इसको हटा दिया गया है, मतलब इसको ये बोला गया है कि आप कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रोक सकते हो अपना, और इसके पीछे कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ये आपको बताने हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दो केसेस हैं, एक गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट है और एक कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट है, जहां पे यहां पे तो ये बोला गया है कि बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट है, इट विल ट्रायम्फ द इंडिविजुअल राइट। लेकिन यहां पे ये बोला गया है कि नहीं, इंडिविजुअल राइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंसिटिव केसेस लाइक वुमेन जब इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके केस में ये हटा देना जरूरी है। सो बिकॉज दीज टू कंफ्लिक्टिंग जजमेंट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं हमारे पास। यू नीड टू कोट दीज टू जजमेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? द बिगेस्ट चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन defamation and freedom of expression. The right to be forgotten cannot be deemed to have an what we say absolute right.
तो जहां पे आपका अच्छा हमेशा ध्यान रखना किसी भी पेपर में, चाहे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 या पेपर 4 में एग्जैक्टली मतलब पेपर 4 में ज्यादा चीजें लागू होती हैं, बट नॉर्मली भी जहां पे आपको एनालिसिस वाली बात आ रही हो, जहां पे आपको एक ओपिनियन देना हो, वहां पे अपना ओपिनियन इस तरीके से बनाइएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहता है। पब्लिक बिकॉज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, ठीक है, आप एक आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे या आईआरएस बनोगे, तो आपकी जो दायित्व है वो है सोसाइटी की तरफ, नॉट टू सम इंडिविजुअल। तो अगर सोसाइटी का गुड है किसी चीज में, तो वहां पे इंडिविजुअल को सैक्रिफाइस किया जा सकता है, इंडिविजुअल कैन बी सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे जिस भी ओपिनियन वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा। नाउ IND-EA फ्रेमवर्क, इसको हम बोलेंगे इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी एक रिसेप्शन होती है, आपको कुछ भी काम है, आप इस रिसेप्शन पे आके ही व्हाट वी से इंटरेक्ट करते हो। उसके बाद ये लोग हैं जो पूरा प्रोसेस करवाते हैं यहां से यहां तक का, एंड दे विल गिव यू सर्विस। यहां पे आप यहीं पे करते हो और आपको पूरी सर्विस होके यहां पे मिल जाती है। दिस इज अ फुल एंटरप्राइज, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऐसे है, डिपार्टमेंट्स में फैली हुई है। अगर आपको वाटर डिपार्टमेंट से काम है तो आपको वाटर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले से काम है तो इलेक्ट्रिसिटी के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको डिफेंस में काम है तो डिफेंस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, राइट। इससे क्या होता है, इससे होती है इनकन्वीनियंस। आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है, और आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं या आपको फ्रैगमेंटेड सर्विसेज मिल रही हैं। दूसरी बात क्या होता है, लेट सपोज हम ये अर्बनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अर्बनाइजेशन का एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एमसीडी वाले हैं या पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो रास्ता बना के गए, है ना, रोड बना के गए वो यहां से, ठीक है, और कल जो वाटर डिपार्टमेंट वाले हैं वो यहां पे आके और ये खोद गए पूरा, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी वालों को नहीं पता कि ये रास्ता खुद चुका है और वाटर डिपार्टमेंट वालों को नहीं पता कि ये रास्ता अभी बना है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो ये रास्ता कल ही तो बना है, उससे पहले ये काम कर दिया जाता, राइट। तो बिकॉज यहां पे जो इंटर डिपार्टमेंट सिनर्जी है, व्हाट वी से इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, दैट इज लैकिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी, और इस इनएफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिसोर्स वेस्टेज, ठीक है। और इस सब की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम इन गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए यू नीड समथिंग जहां पे आपका डेटा सीमलेसली ट्रांसफर हो, कि अगर एक हेल्थ डिपार्टमेंट में आप गए हो तो वहां पे आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका डेटा अवेलेबल होना चाहिए सबके पास, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए हो और आप अलग अलग जगह बिजनेस करते हो, गुजरात, राजस्थान, यहां वहां, तो सब जगह की इंफॉर्मेशन आपके पास एक जगह होनी चाहिए, राइट। सो जिससे क्या होगा कि ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी बढ़ जाएगी। नाउ सो ये IND-EA यानी कि इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या है वो आपको बताना है। हाउ इट इज गोइंग टू एड द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस, ये तो मैंने बता ही दिया कि इन एफिशिएंसी इसको बढ़ाएगा, ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगा, ईज ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देगा, पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, ये सब, और व्हाट वी से एक्सपेंडिचर कम करेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जो प्लानिंग तो शॉर्ट टर्म में की जाती है, लॉन्ग टर्म में तो 5 ईयर प्लान तो हटा ही दिया हमने, वो भी कोई खास सक्सेसफुल नहीं थे फिर भी, तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है। तो इसी तरीके से आपको इस आंसर को व्हाट वी से बनाना है अपना, कि व्हाट इज IND-EA, उसके बाद ये कैसे विजन करेगा और उसमें व्हाट इज द कंक्लूजन, ठीक है। सो इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग अ होलिस्टिक आर्किटेक्चर ट्रीटिंग गवर्नमेंट एज अ सिंगल एंटरप्राइज और एंटरप्राइज ऑफ एंटरप्राइज। क्यों, बिकॉज लेट्स सपोज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमने क्लब करके एक बड़ा एंटरप्राइज मान लिया, तो दिस इज एन एंटरप्राइज ऑफ एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहां पे मेन यूज होगा ICT का, राइट। तो हाँ, एक चीज और, हमेशा अपने आंसर में टेक्नोलॉजिकल एंगल डालना, टेक्नोलॉजिकल एंगल डालना कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन का यूज,
पंचायती राज डे पे अभी कौन सा वो स्कीम लॉन्च हुई है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे वो कौन सी स्कीम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं स्कीम का, कि जहां पे ड्रोन्स को यूज करके लैंड मैपिंग होगी, लैंड मैपिंग होगी। ये हम अपने पीटी के उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। योजना है वो आपको मुझे बतानी है, लैंड मैपिंग होगी, जिससे कि एक तो लोगों को फाइनेंशियल एसेट्स बनाने में मदद मिलेगी, दूसरा लैंड की जो जुडिशियल इश्यूज होते हैं वो कम होंगे। तो ये सब आपको देखना है। Now, what is reductive pricing auditing? Explain how it defeats the rationale of audit and create a lag of upholding accountability in the government. पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि रिडक्टिव प्राइसिंग ऑडिट होता क्या है। अगर आपने देखा हो जो लोकसभा की स्पीचेस हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी स्पीचेस दी हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, राफेल हमने लिए, ठीक है, और उनकी प्राइसिंग को लेके एक इशू था, ठीक है। प्राइसिंग को लेके क्या क्या इशू था कि भाई उसमें ओरिजिनल 120 क्राफ्ट्स की डिमांड थी जो कि रिड्यूस करके 36 कर दिया था। उसके बाद उसमें एक वेवर दे दिया गया था, जो HAL को पहले इंक्लूड कर रहे थे वो वेवर भी उन्होंने हटा दिया था। उसके बाद ये जो बैंक गारंटीज थी, बैंक गारंटीज जो हमने दी थी, उसकी वजह से कॉस्ट एक्सक्लेट हो गया था। उसके बाद जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम थी, बिकॉज इसमें मेन इशू क्या था कि भाई एक तो PMO से लोग वो कर रहे थे नेगोशिएट, और एक जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम बनाई गई थी इसके लिए वो नेगोशिएट कर रही थी। तो इनके कमेंट्स जो थे इस पूरी डील पे, सो वो भी उनको हटा दिया गया। तो रिडक्टिव प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने इंफॉर्मेशन दे रखी है सारी, एंड देन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम ब्लैकआउट कर देते हैं ऐसे। अब एक बात बताओ, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इट विल क्रिएट अ लैग इन अपहोल्डिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और अकाउंटेबिलिटी जरूरी क्यों है, बिकॉज ऑफ लेजिटिमेसी, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट। हाउ इट डिफीट्स द रैशनल ऑफ ऑडिट, बिकॉज जब आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे कि भाई रिसोर्स जो यूटिलाइज हुई है, क्या उसको इकोनॉमी को ध्यान में रख के यूटिलाइज किया गया है, क्या ऐसा हुआ है, उसके बाद क्या कोई करप्शन हुआ है, क्या कोई किकबैक्स दिए गए हैं, राइट, क्या कोई करप्शन हुआ है, क्या कोई किकबैक्स दिए गए हैं, क्या एक्सेसिव प्राइसिंग देके किसी को फायदा पहुंचाया गया है। तो ये तभी पता लगेगा जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर होंगे कि भाई इस चीज का प्राइस 100 रुपए था और इसको हमने 180 रुपए में खरीद लिया, तो ये जो 80 रुपए का डिफरेंस है, इज इट जस्टिफाइड और नॉट। जब आप इसी को काला कर दोगे तो पता कैसे चलेगा। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, वो तो रही नहीं बिकॉज नंबर नहीं है, और इसकी वजह से क्या है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में किसी के पास नंबर ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कैसे करेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इन कृष्णा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हेल्ड दैट द प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। अब यहां पे क्या इशू है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो व्हाट वी से बायपासिंग ऑफ, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका जो मेन डिमांड है वो ये है, बायपासिंग ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। क्या ये सही है कि नहीं? ऑब्वियसली बात ये सही नहीं है, बिकॉज लेजिस्लेचर का काम ही है कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करना है। सो पूछा गया है कृष्णा कुमार और स्टेट ऑफ बिहार के, उसमें ये माना गया है कि प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यहां पे क्या है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और डिसीजन जो होना चाहिए वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिमेट्री, सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिसीजन पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। और ऑर्डिनेंस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन इमरजेंसी या हाउस इज नॉट इन सेशन, इसकी वजह से आर्टिकल 213 एंड 123 जो है ये पावर देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि वो ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। देन दिस ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। और जब हम ऑर्डिनेंस को अप्रूव कराते हैं लेजिस्लेचर में, तो द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव व्हाट वी से रीजन कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था आप पे कि आपको इमरजेंसी में प्रमलगेट करना पड़ा। तो
अगर लेट सपोज हुआ क्या था, बिहार में क्या हुआ था एक बार कि ये ऑर्डिनेंस निकाला, उसके बाद 6 महीने तक ये वैलिड होता है, असेंबली में इसको नहीं पास किया गया, लैप्स करा दिया गया, उसके बाद असेंबली का सेशन खत्म हुआ, दोबारा ऑर्डिनेंस डाल दिया, फिर 6 महीने इसको रहने दिया गया, इसको पास नहीं कराया, फिर ये लैप्स हो गया, फिर इसकी सेशन खत्म हो गई, फिर ये, तो रिपीटेड प्रमलगेशन किया गया इस ऑर्डिनेंस का, जिसकी वजह से जो बाईपासिंग है ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी वो पॉसिबल हुई। इसी के लिए ये इसको चीज को ये बोला गया है कि in the light of our statement analyze why the rate of promulgation of ordinance is increasing, क्यों बढ़ रही है ये, तो ये आपकी सब हेडिंग हो गई एक। what are the constitutional safeguards to prevent it, ये भी आपका एक हेडिंग हो गई, ठीक है। तो ये हमने इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो या इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड हो या पार्लियामेंट्री अप्रूवल ड्यूरिंग सेशन, ये अप्रूव होना चाहिए विद इन दी 6 वीक्स, ठीक है। अब ये 3 जजमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आरसी कूपर, यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पे ये बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट का व्हाट वी से कि प्रेसिडेंट की जो डिसीजन मेकिंग, ये जो सेटिस्फैक्शन है कि भाई इमीडिएट एक्शन है, वो उसको अपन चैलेंज कर सकते हैं, ये बोलने के लिए, ये इस बेसिस पे कि भाई इट वाज नॉट इमरजेंट, ये जो है बाईपास करने के लिए इसको हमने इमरजेंसी बना दिया गया था, इसको सिर्फ डिबेट बाईपास करने के लिए प्रमलगेट किया गया, इमरजेंसी कुछ नहीं थी। तो आरसी कूपर केस में ये बोला था। डीसी वाधवा केस में ये बोला गया था कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस इज टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आप इसको रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। और कृष्णा कुमार में तो ये बोल ही दिया गया था कि कंडीशंस अपॉन सैटिस्फैक्शन दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इज नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये तीनों को ये जजमेंट्स, अगर आप 1-2 भी जजमेंट कोट कर देते हो तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। नाउ ये पावर रखी क्यों गई थी? ये पावर रखी गई थी फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, लेकिन अब इसको बाईपासिंग का मेथड बना दिया है। क्यों? बिकॉज हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है जिसमें जो डिबेट की क्वालिटी है वो लो हो गई है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ऑफ लेजिस्लेटर्स वो कम हो गई है। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफेक्शन वाला जो हमारा लॉ है शेड्यूल 10th में, ये भी एक रीजन है। दूसरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है, तो जो पढ़े लिखे लोग, यूथ इज नॉट अट्रैक्टेड टू पॉलिटिक्स, यूथ इज नॉट प्रेजेंट, तो वही घिसे पिटे सारे वो आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, सब वही पुराने लीडर्स आते रहते हैं, कोई लोकसभा में, कोई राज्यसभा में, कोई कहीं कुछ बन जाता है, कोई कहीं कुछ बन जाता है। सो क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर का जो काम है टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और एनीवे इसकी क्वालिटी, पार्लियामेंट डिबेट्स की क्वालिटी डिसरप्शन की वजह से फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी एनीवे लो है, लेकिन फिर भी इस जितनी भी है उसको भी बाईपास करने के लिए, बिकॉज होता क्या है कि पार्लियामेंट में अब 2 चीजें हो गई हैं। एक तो मेजॉरिटी पार्टी रूल है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है, जिसकी वजह से अपोजिशन को ये पता है कि अगर हमने इनको प्रेजेंट करने दिया तो ये पास डेफिनेटली हो जाएगा। और दूसरा, अपोजिशन के साथ सिनर्जी नहीं है, अपोजिशन इज नॉट इन शेप, तो जो अपोजिशन का काम है वो ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं, तो दिस लेड्स टू व्हाट? डिसरप्शंस। और इन्हीं डिसरप्शंस की वजह से लॉज तो बनाने हैं, काम तो करना है, तो ऑर्डिनेंस निकाल देती है सरकार, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 10 नंबर वाले सारे हमारे खत्म हो गए, अब इनको हम कर लेते हैं। बेसिकली इनमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, स्ट्रक्चर आपको वैसे ही रखना है, थोड़ा सा कंटेंट आपको बढ़ जाएगा। Democracy is truly functioning when people can hold their representative accountable for what they were elected for. What do you understand by the direct democracy? यहां पे कीवर्ड आ गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट कौन सी होती है? जैसे हमारी वर्ड विषय डायरेक्ट, जहां पे डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पुराने जमाने में सभा समिति हुआ करती थी, ठीक है, या इसको हम ग्राम सभा को भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारी ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे एमएलए हैं हमारे, एमपी हैं हमारे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी वो जो ट्रूली फंक्शन करती है वो तभी करती है व्हेन पीपल कैन हेल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। व्हाई? बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैंडेट
ऑफ द मासेस, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैंडेट ऑफ द मासेस। और जब मैंडेट ही आप फुलफिल नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं होगी, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नेंस। डेमोक्रातिया, इसका जो रूट वर्ड है वो है डेमोक्रातिया, दैट इज रूल ऑफ सेल्फ, रूल ऑफ सेल्फ। अब केवल फर्क इतना आ जाता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खाना कमाना भी है, अब नौकरी भी करनी है, तो जो गवर्न कर रहे हो आप करो, लेकिन आप मेरे से पूछ लो कि भाई ये डिसीजन लेना है, क्या मैं ले लूं, तो वो आप करो। तो अगर मैंने जो डिसीजन आपको बोला है, लेट्स सपोज मेरी एक डिमांड है कि मुझे भाई इस तरीके का एक लॉ चाहिए, लेट्स सपोज सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड मेरा कोई लॉ चाहिए, अब आप वो लॉ बना नहीं रहे हो, तो क्या आप अपना वर्क फुलफिल कर रहे हो? क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो? नहीं कर रहे। दैट इज वाई डेमोक्रेसी, क्योंकि सेल्फ रूल से रिलेट करती है, इसलिए जो ट्रूली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है वहां पे वही होती है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो है अकाउंटेबल होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी? हमें पता लग गया कि डायरेक्टली जो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू राइट टू रिकॉल? अभी राइट टू रिकॉल होता क्या है? राइट टू रिकॉल का इतना सा ही मतलब है, लेट्स सपोज मैं आपका नेता, आपने चुन के भेज दिया एमपी, एज एन एमपी आपने मुझे भेज दिया, ठीक है। अब मैं काम नहीं कर रहा, मस्त आराम से 5 साल मैंने मस्ती मारी है, राइट, कॉन्फ्रेंसेस में गए, बाहर घूमने गए, काम नहीं किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ। अब लेट्स सपोज 1-2 साल आपने देखा, 1-2 ईयर्स आपने देखा कि यार अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, अब नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी, तो आपने क्या किया? एक रिकॉल वोट किया, रिकॉल वोट किया। अब उस रिकॉल वोट में आपने क्या किया कि भैया हमें ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, हम इसको वापस बुलाना चाहते हैं बिकॉज ये हमारा मैंडेट फुलफिल नहीं कर रहा। सो दिस इज व्हाट राइट टू रिकॉल इज। बट अब क्या इंडिया में पॉसिबल है? ये इंडिया में इसलिए पॉसिबल नहीं है, अच्छा तो है, द आइडिया इज गुड, बट ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज आप देखो हमारे इंडिया में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑपोजिशन जो है छोटी छोटी बात पे डिमांड करेगी भाई राइट टू रिकॉल कराओ। फिर तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्स का रिक्वायरमेंट काफी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डिसकंटिन्यूटी आएगी पॉलिसीज में, क्योंकि आज ये है, फिर परसों कोई और आ गया, फिर अगले दिन कोई और आ गया। उसके बाद जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस फेयर में वर्क करेगा, ठीक है, और इसी वजह से उसको डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है पब्लिक की हर डिमांड फुलफिल करी जाए, बिकॉज इट्स नॉट दैट की पब्लिक इज ऑलवेज राइट। आपको कभी कभार, जैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस दिया था चौरी चौरा के बाद, हालांकि उस समय पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल गांधी जी के खिलाफ था, बट ही डिड व्हाट वाज राइट, राइट। तो इसी तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मान लो कोई एक सेक्शन ऑफ लोग कह रहे हैं कि भाई इसको मारो बिकॉज ये दूसरी जाति का है, धर्म का है या दूसरे स्टेट का है, तो क्या एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इस डिमांड को मानना चाहिए? अगर वो नहीं मानेगा तो वो उसको रिकॉल कर लेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस प्रेशर में जिएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस होने की वजह से राइट टू रिकॉल हमारे यहां अभी उतना ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नाउ तो बेहतर ऑप्शन क्या है ये हमने देख लिया। अब ये 3 चीजें हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, जैसे आपने देखा होगा ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ था, इनिशिएटिव जैसे जन लोकपाल हुआ था, और रिकॉल मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया कि पावर होती है, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। एडवांटेज तो आपको पता है कि भाई ये अकाउंटेबिलिटी बना के रखेगा, ट्रांसपेरेंसी बना के रखेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करके रखेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बना के रखेगा, उसको काम करने पे मजबूर करेगा, यानी कि वर्क, ठीक है। ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब चीजें हैं। डिसएडवांटेज आपने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? राइट टू रिजेक्ट। वे फॉरवर्ड क्या है? राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट का मतलब क्या है कि आप जैसे लेट सपोज ईवीएम पे आप वोट करते हो ना, यहाँ पे एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, नीचे नोटा होता है, तो अभी तक हमारे यहाँ नोटा के वोट्स काउंट नहीं होते, इट्स जस्ट अ नॉमिनल थिंग। लेकिन एक जो डिबेट है वो ये है कि भाई नोटा का वोट अगर ज्यादा है किसी भी कैंडिडेट से, इसका मतलब है पीपल हैव रिजेक्टेड एवरी वन ऑफ देम बिकॉज नोटा का वोट सबसे ज्यादा है। तो इसी को राइट टू रिजेक्ट बोलते हैं कि व्हाट which the candidate that the party has sent to our constituency या has given the ticket from our constituency, we do not like that candidate because उसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, he has done nothing in past 5-10 years,
ऑफ जिसमें वो पावर में था, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो दिस इज अ बैलेंस्ड ऑप्शन, बिकॉज इससे एक तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऑपोजिशन भी ज्यादा हल्ला नहीं करेगा, बिकॉज अपोजिशन का हल्ला करना जरूरी है, लेकिन हर बात पे छोटी छोटी चीज पे आप करोगे तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता, राइट। सो ये बिल्ट इन सेफगार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द लोकल गवर्नेंस। अब जब भी आपको लोकल गवर्नेंस की बात करनी है तो आपको इसका जो मेन एजेंडा है वो क्या है? मेन एजेंडा है सेल्फ गवर्नेंस, जिसको हम गांधीयन स्वराज भी बोलते हैं, गांधीयन स्वराज, ठीक है। और ये इसका बेसिस क्या है? इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स होने चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स होने चाहिए, राइट। सो इलिसिडेट करना है हमको कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बिफोर एंड आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो बिफोर में तो अपन को पता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1952 का, फिर नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। और फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, जैसे बलवंत मेहता कमेटी बनाई गई, अशोक मेहता कमेटी बनाई गई। उन्होंने सजेस्ट किया जो आर्टिकल हमारा 40 है डीपीएसपी में, जहां पे हम पंचायती राज या पीआरआईज की बात करते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, क्या उनको हमें लाना चाहिए, उनको इंस्टीट्यूट करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देनी चाहिए। अब इतना तो यहां तक तो आपको पता लग गया कि 73rd से पहले ये दोनों चीजें थी, 73rd के बाद तो आपको पता ही है, सिंपल आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजंस डिस्कस कर देने हैं कि यहाँ पे इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, रेगुलर 5 इयर्स में इलेक्शन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, वो सब है। उसके बाद जो मेन काम है वो ये है, elucidate how far we are from Gandhian dream of ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज मतलब विलेज रिपब्लिक्स की बात है यहाँ पे, विलेज रिपब्लिक्स की बात है यहाँ पे। तो क्या ये हो पा रहा है? सिंस देयर इज अ रूरल डिस्ट्रेस, ठीक है, फार्मर सुसाइड बढ़ रही है, ठीक है, वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, माइग्रेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज ज्यादा हैं, कास्ट बैरियर्स अभी भी हैं। सो क्या हम, या पार्टिसिपेशन नहीं है लोगों का इन ग्राम सभास, बिकॉज ये सब चीजें नहीं है, सो वी आर नॉट क्लोज टू गांधीयन ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज। हालांकि ये सब चैलेंजेस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स बता देंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाउ वी आर क्लोज टू गांधीयन ड्रीम, बिकॉज हमें पता है कि हमारे यहाँ करीबन 2.5 लाख पंचायत है, 2.5 लाख पंचायत में करीबन 6 से 7 लाख जो है पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कई कई जगह तो जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तो ओवर 50% रिजर्वेशन वीमेन के लिए है। तो बट certainly it has contributed to improving the local governance, but जो mismatch है between the mandate and the resources and the mindset, ये issues create करता है for achieving that ग्राम स्वराज, right? Next question, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स मेंशन करने हैं, वो तो आपको हर क्वेश्चन में करने हैं। पॉलिटी के हर क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, राइट्स, इक्वालिटी, ये सारे कीवर्ड्स आपको क्वेश्चंस में लिखने हैं ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ने जो अपनी वो है लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें तो ये है ही, जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है। तो ये पूछ रहा है कि कुछ एक स्कॉलर्स हैं जो कि ये मानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है और हेंस अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। क्यों? वो ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपकी वॉइस और एक होती है आपकी ओपिनियन। ये दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्योंकि एक तो वॉइस भी होनी चाहिए और एक ओपिनियन भी होना चाहिए। सर्टेनली ये बात सही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इट वाज नॉट एन अडल्ट फ्रेंचाइज, ये अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्टेड नहीं थी। दूसरी बात, ये इंडियन इंडिपेंडेंट और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके मैंडेट पे बनी थी, ठीक है। उसके बाद ये लॉयर डोमिनेटेड थी, ठीक है। फिर कई लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये हिंदू डोमिनेटेड भी थी,
उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि कांग्रेस डोमिनेटेड थी, कई लोग इसको बोलते हैं बुर्जुआसी डोमिनेटेड थी, जो मार्क्सिस्ट होते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई ये अर्बन डोमिनेटेड थी। ठीक है, तो ये सब जो है दीज आर दी चैलेंजेस जो आपको बताने हैं, दीज आर दी क्रिटिसिज्म जो ये स्कॉलर्स देते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी कैन से दैट इट वाज एन अंडर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी या अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और इसी वजह से वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ढंग से नहीं ले पाई। बट क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज इफ यू सी अंबेडकर, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरोजिनी नायडू, नरसिम्हा राव, नॉट नरसिम्हा राव, सॉरी नरसिम्हा राव, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो फार्मर लीडर्स, डिप्रेस्ड क्लास लीडर्स, अर्बन लीडर्स, रूरल लीडर्स, विमेन लीडर्स, ये सब थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज अ डाइवर्सिटी इन ओपिनियन एंड देयर वाज आल्सो अ डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस। तो ये कहना अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है कि इट वाज एन अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी, बिकॉज अगर अनरिप्रेजेंटेटिव होती तो विमेन के लिए रिजर्वेशन या डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन नहीं हो पाता इस बॉडी में। ठीक है, जैसे अब इफ यू सी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। ठीक है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी उन्होंने बोला था इसलिए हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हिंदी और इंग्लिश कर दी थी, अदरवाइज वहां पे एक नेशनल लैंग्वेज की बात हुई थी। तो इफ यू सी अगर अनरिप्रेजेंटेटिव होती तो क्या ये पॉसिबल होता कि एक लैंग्वेज हिंदी या हिंदावी या हिंदुस्तानी जिसको हम एक नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर रहे थे वो नहीं बन पाती? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट? इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव थी। So what are the features of constitution that shifts the power balance in favor of union government? अब सिंपल सी बात है, जैसे हमारी जो फेडरेशन है उसको केसी वेयर जैसे स्कॉलर्स बोलते हैं क्वाजी फेडरल या फेडरेशन स्यू जेनेरिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। हमारा क्या है, देखो फेडरेशन दो तरीके की होती है, एक होती है होल्डिंग टुगेदर, एक होती है कमिंग टुगेदर। जैसे कि इंडिया जो थी एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट था पूरा, ठीक है, ब्रिटिश राज के अंदर था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ा एंड देन इट बिकेम अ फेडरेशन। इसलिए आर्टिकल 1 में हम क्या बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होता। लेकिन इफ यू सी यूएसए, इसमें 13 कॉलोनीज थी अलग अलग। पहले कुछ एक कॉलोनीज आई फिलाडेल्फिया कांग्रेस में, उसके बाद कुछ और एक कॉलोनीज आई, इन्होंने जोड़ के अपने आप को एक फेडरेशन बनाया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू फेडरेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लॉज अलग हैं, फेडरल लॉज अलग हैं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट अलग है और स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है। हमारे क्या इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें आपको बेसिकली फेडरेशन और फेडरलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शिफ्ट्स द पावर बैलेंस इन फेवर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड हाउ स्टेट्स आर रेजिंग द डिमांड इन क्वेस्ट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे ये बैलेंस फेवर करता है। बैलेंस इन फेवर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इफ यू सी पोस्ट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट रूल 360, 352, 365, 356, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, सेंटर स्टेट रिलेशन, टैक्सेशन पावर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ऑल दीज थिंग्स, इन सब के लिए स्टेट्स को जो है वो सेंटर की अनुमति लेनी पड़ती है। सो दैट इज व्हाई वी से कि जो बैलेंस है वो यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में है। बट स्टेट्स क्यों ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात उठा रही है? व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, ग्रेटर ऑटोनॉमी का जो मेन रीजन है वो ये है कि जो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी है, वन साइज फिट ऑल पॉलिसी ये नहीं चल सकती बिकॉज रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। डिस्पैरिटी पहले लिख दिया, अंदर तक डिस्पैरिटी भरी हुई है। रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो ज्यादा हैं। अब यू सी ईस्टर्न इंडिया में अगर हम इंडिया का मैप बनाए, आई नो थोड़ा खराब बनेगा बट भारत तो भारत है ना,
ये भारत का मैप अगर हम माने तो इफ यू सी ये वाला इलाका ये मिनरल में बहुत रिच है, बट इफ यू सी वेस्टर्न लाइन, वेस्टर्न वाला इलाका इसमें मिनरल्स नहीं है, बट इफ यू सी यहाँ पे ट्रेड अलग तरीके से होता है, यहाँ पे ट्रेड अलग तरीके से होता है। ये वाला जो इलाका है ये प्लेन है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छे से होता है, लेकिन ये लद्दाख वाला इलाका यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता बिकॉज डेजर्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे वो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे जो है वो फार्म सेक्टर में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए और साथ में जो लोगों की एस्पिरेशन है, यहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ पे कल्चर अलग है, तो यहाँ पे लोगों की एस्पिरेशन जो है वो भी डिफरेंट है। और वो कब पूरी होंगी? वो तभी पूरी होंगी जब स्टेट के पास पावर होगी। इफ यू सी दिल्ली की जो स्टेटहुड की डिमांड थी वो क्यों थी? बिकॉज दिल्ली को लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की पावर्स नहीं थी, और जब तक ये पावर्स नहीं, ये तीन तो मेन पावर्स होती है, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस की अगर पावर आपके पास नहीं है तो आप कैसे मेंटेन करोगे किसी स्टेट को, राइट? सो यहाँ पे जो आप कनेक्ट कर सकते हो उसको रीजनलिज्म से कनेक्ट कर सकते हो। रीजनलिज्म ऑल्दो एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, लेकिन फिर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ रीजनलाइजेशन गेटिंग डेवलप्ड इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सब आपन ने देख लिया है। ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक इशू है कि सेंटर का कंट्रोल रहता है ना आईएएस आईपीएस पे। ना जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? ये अपन को पता है कि जब जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव या व्हाट वी से प्रोएक्टिव होके काम करती है जब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फेल होते हैं या डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते, नॉट फुलफिलिंग द डिमांड्स, या रिस्पॉन्सिव नहीं होते, या देयर इज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। अब ये सब होने से इशू क्या है? इस सब से इशू होता है डेमोक्रेसी पे सीधा। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी अगर ये सब होगा तो इसी को रोकने के लिए लेट सपोज कोई लॉ बना दिया। अब हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? लेट सपोज पार्लियामेंट है, उसमें सभी मेजर पार्टी के लोग हैं, मतलब एक पार्टी की मेजोरिटी है। अब उन्होंने बता दिया कि किसी भी लेट सपोज हमने ये बोल दिया कि एक सर्टेन कम्युनिटी का जो आदमी है उसको हम मार देंगे, ठीक है, अगर उसने ये काम किया तो, ठीक है। अब हालांकि इफ यू सी ये चीज अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये ठीक होगी बिकॉज ये जो किलिंग हो रही है दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसके अपोजिशन में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें और डिफरेंस क्या है कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये देखता है कि क्या ये प्रोसीजर इटसेल्फ जो फॉलो किया गया था क्या ये रीजनेबल है, क्या किसी को क्लासिफाई करके और ऐसे मारना क्या ये रीजनेबल है, तो ये डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, ये अपन को पता है कि व्हेन जुडिशियली प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ ड्यू टू द फेलियर ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव टू प्रोटेक्ट the rights of the individual or right of the citizens is known as judicial activism. Do you think that it can be lead to conflict between judiciary and executive? Obviously, because जब इनकी जो sphere of power है, हमारी जो concept है वो क्या है? separation of power. लेकिन हमारे यहाँ strict separation of power नहीं है, rather हमारे यहाँ separation of function है, separation of function है, ठीक है। अब because judiciary जब let's suppose विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी जुडिशरी ने, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी। ये क्यों बनाई थी? बिकॉज देयर वाज नो लॉ दैट वाज प्रेजेंट टू डील विद सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये जो विशाखा गाइडलाइंस थी ये एक लॉ की तरह काम कर रही थी, ठीक है। अब व्हेन सच काइंड ऑफ जजमेंट्स लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉ से कोलाइड करती हैं, सो यहां पे इशू आ जाता है फिर, एंड इसी वजह से हम ये कहते हैं द प्रॉब्लम अराइज ऑफ टू पावर सेंटर्स, दो पावर सेंटर्स की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो दिस इज अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट।
नाउ गिव रीजंस इन फेवर ऑफ योर अगेंस्ट योर आर्ग्यूमेंट, फेवर और अगेंस्ट में हमें देना है, तो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब कैन इट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज? नहीं। कैसे? जैसे विशाखा गाइडलाइंस थी, इन्हीं को बेसिस बना के लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया जो शी एक्ट है, राइट। और अगर हम देखें कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट में कैसे आती हैं, तो ऑब्वियसली बात है, लेट सपोज कोई एक पर्टिकुलर लॉ है जो कि लेजिस्लेचर नहीं लाना चाहता और ये जुडिशरी ने गाइडलाइन दे दी है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। नाउ एक इशू जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ है, वो ये है जुडिशियल ओवररीच का। जुडिशियल ओवररीच का इफ यू सी, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि हाईवेज के पास जो लिकर स्टोर्स है वो बंद हो जाने चाहिए, या जो सिनेमा हॉल्स है उनमें नेशनल एंथम होना चाहिए। सो दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ जुडिशरी टू पास डायरेक्शंस और टू पास और टू मेक लॉज। जुडिशरी का मेन काम है टू एडजुडिकेट, टू डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज और टू डिसाइड ऑन द इश्यूज इम्पार्शियल रह के। लेकिन यहां पे क्या है, जुडिशियल ओवररीच होती है। अब यू सी कि अगर नेशनल हाईवेज के पास लिकर स्टोर्स बंद होंगे, तो ये जो डोमेन है ये एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, लेजिस्लेचर का डोमेन है। ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि कहां होंगे कहां नहीं होंगे, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पे सिनर्जी भी दिखती है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी। अच्छा, हमारे यहां जो स्पीकर है उसकी सबसे बड़ी इशू क्या है कि वो पार्टी से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू पार्टी। यूके यूएस में यूके में जनरली क्या है, जो स्पीकर होता है ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम पार्टी जब तक वो उस पोस्ट पे है, एंड देन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो अनकंटेस्टेड रहती है, ताकि उसको सिक्योरिटी रहे कि मेरी जो सीट है वो नहीं जाएगी। बिकॉज अगर आप एक एमपी हो अगर आप एक एमपी हो तो यू नीड टू वर्क फॉर योर पार्टी, यू नीड टू वर्क फॉर द डिमांड ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। बट बिकॉज आप स्पीकर भी हो तो आपको न्यूट्रल भी रहना है, तो यहां पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1962 तक क्या था, 1962 तक जो स्पीकर की पोस्ट थी और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट थी वो सेम रूलिंग पार्टी को जाती थी। लेकिन 1962 के बाद एक हेल्दी कन्वेंशन डेवलप हुआ कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से रहेंगे और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो आपके ऑपोजिशन पार्टी से रहेंगे, तो एक हेल्दी वो हुआ। लेकिन इफ यू सी देयर हैज बीन मेनी इंस्टेंसेस, चाहे आप राजस्थान में देख लो, चाहे आप कर्नाटक में देख लो, कहीं भी आप अरुणाचल में देख लो, मणिपुर में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, स्पीकर की जो न्यूट्रलिटी है उस पर कई सारे सवाल हैं। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी, ये तो आपको पता ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब है कि इम्पार्शियलिटी रखनी है, इम्पार्शियलिटी। और ये रखनी क्यों है, ताकि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की जो पावर्स है या पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की डिग्निटी मेंटेन रहनी जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि जो लेजिस्लेचर है वो अपना एफिशिएंटली काम कर पाए। अगर एक स्पीकर है वो ओपोजिशन को टाइम ही नहीं दे रहा है बात कहने का, तो फिर ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, राइट। तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। तो इस वजह से डिफाइन इट सिग्निफिकेंस इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मेंशन, तो ये सिग्निफिकेंस स्पीकर ऑफिस का बताना है, वो हमने आपको बता दिया, मतलब ये आपको पता ही है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 250 वर्ड का क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे आप सब हेडिंग्स में तोड़ सकते हो। सिग्निफिकेंस न्यूट्रलिटी क्या है, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, इंश्योरिंग पॉलिटिकल फेयरनेस, अपहोल्डिंग फेडरलिज्म, ठीक है। Continuity in governance and keeping a check on executive for a fair system of election to maintain the health of the economy। तो ये सब चीजें जरूरी हैं स्पीकर की पोस्ट से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि हम हेल्दी कन्वेंशन यूके से उठा लें कि भाई पार्टी पोस्ट से रिजाइन करेंगे और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अनकंटेस्टेड जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वाइडली डिबेटेड टॉपिक इन इंडिया। In the light of recent events, define uniform civil code along with provisions mentioned in the constitution। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोविजन क्या मेंशन्ड है, आर्टिकल 44, ठीक है। डू यू थिंक दैट इट विल एंड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कम्युनिटीज? सोचिए क्या हो सकता है ये, इज इट पॉसिबल?
यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले समझ लेते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है। होता क्या है, इंडिया में देयर इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक फ्रीडम है, ठीक है। यहां पे क्या है, जो रिलीजियस लॉज हैं वो फॉलो करने की आजादी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि काफी सारे रिलीजियस लॉज जो हैं वो अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूसीसी लाना चाहते हैं। होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा यूसीसी से? पहली बात, जेंडर जस्टिस, बिकॉज मोस्टली रिलीजन्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल जाएगा। किसी भी कम्युनिटी की बात कर लीजिए आप, चाहे डिवोर्स लॉज, इनहेरिटेंस लॉज, प्रॉपर्टी लॉज, मैरिज लॉज, ये सब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं इन एवरी कम्युनिटी। जेंडर जस्टिस। दूसरा आपको होगा जो जस्टिस है, जुडिशरी वाली जो व्हाट वी से लीगैलिटीज हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सनल लॉज, तो यहाँ पे जो जुडिशरी है उसका काम बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा, टाइम एंड रिसोर्सेस काफी ज्यादा लगती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द चैलेंजेस जिसकी वजह से यूसीसी लाना जरूरी है। उसके बाद ये डिबेटेड क्यों है? डिबेटेड इसलिए है बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 एंड 21। इसलिए ये डिबेट है। कोई कहता है राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमें हमारी कम्युनिटी के हिसाब से जीने की जो आजादी है। कोई कहता है नहीं, इंडिविजुअल को अधिकार है अपनी लिबर्टी को मेंटेन करने की, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद with provision mentioned in, do you think that it will end the discrimination? क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड हो जाएगा? देखिए, किसी भी सोशल प्रॉब्लम का लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। किसी भी सोशल प्रॉब्लम का लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन बहुत ही रेयरली सक्सेसफुल होता है। व्हाई? बिकॉज सोशल प्रॉब्लम जो है वो साइकी से आती हैं। पैट्रियार्की जो है ये आदत है, जो पितृसत्ता की जो आदत है, माइंडसेट है। अगर आप देखेंगे मम्मी बाहर जा रही है, बहन बाहर जा रही है, आपकी कोई फ्रेंड बाहर जा रही है, तो अंदर से अचानक से एक भाव आएगा कि जी नहीं, प्रोटेक्ट करना है जी हमें ने, ये तो बेचारी अबला नारी टाइप है, बाहर जाएगी, कोई देख लेगा इसको या कोई छेड़ देगा तो हमारे को शेर बनना है वहां पे। तो हालांकि दिस इज अ गुड थिंग, बट ये इनहेरेंटली दिखाता है कि हम अंदर से कितने ज्यादा पेट्रियार्किकल माइंडसेट के हैं कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन, ठीक। इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, मैं एक तरीके की बात बता रहा हूं कि आप खुद सोचो, अगर कोई औरत है या आपकी मम्मी है, वो सामान उठा रही है बहुत सारा, है ना, तो आप क्या लोग झट से मम्मी नहीं आपका बेटा इतना जाओ, आने में उठाऊंगा सामान। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप उनको, हालांकि इसको समझना थोड़ा सा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, ये यही तो दिखा रहा है कि आप उनको थोड़ा सा वीक समझते हो, ठीक है। और वो वीक क्यों है? बिकॉज उनको अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी, कोई दुनिया में कोई सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आदमी ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, औरतें भी बॉडी बिल्डिंग करती हैं, लेकिन वो कम करती हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन डाइवर्जेंस विद द फेमिनिटी ऑफ अ वुमन, ठीक है। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइकी से आती हैं। साइकी को सॉल्व लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं किया जाता। साइकी को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रास रूट डिमांड की, ग्रास रूट वर्क की जरूरत है। जब कम्युनिटी के लोग इटसेल्फ ये चाहें कि नहीं, अब हमें पितृसत्ता नहीं रखनी है, या हमें अब डिस्क्रिमिनेटरी लॉज नहीं रखने हैं, हम सबको बराबर देखना चाहते हैं, तभी इन सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें पूछा, डू यू थिंक दैट इट विल एंड डिस्क्रिमिनेशन? तो इसमें आपको दो भाग डिस्कस करने हैं। यस, इट विल एंड। कैसे? कि भाई ये जो लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई कर देगा, जुडिशरी को मोर एक्सेसिबल बनाएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा प्रोसेस का, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि कई कम्युनिटीज में क्योंकि लॉज के डिफरेंस होते हैं, तो उन लॉज के डिफरेंस की वजह से एक दूसरे की कम्युनिटी के बारे में प्रेजुडाइजेस बन जाते हैं, ठीक है, उनको भी खत्म कर देगा। लेट्स सपोज रिसेंटली गोवा का जो एग्जांपल दिया था, पोर्टुगीज ने जो सिविल कोड निकाला था गोवा में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट्स अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये एंड करेगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बट इट विल नॉट एंड। व्हाई? बिकॉज दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स के बिहेवियरल इश्यूज हैं ये, और बिहेवियरल इश्यूज लॉस से सॉर्ट नहीं होते। स्वच्छ भारत में भी देख लो आप,
टॉयलेट्स बन गए हैं लेकिन पानी नहीं है उसमें, या बन भी गए हैं तो लोग यूज नहीं कर रहे बिकॉज उनको खुली हवा चाहिए, राइट। तो वो चीजें सॉल्व नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स है ना कीवर्ड्स, जेंडर जस्टिस, ऐसे भारी भारी कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में डालने हैं जरूर से। यार बड़े समझदार बच्चे हैं, किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। या तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ढंग से, या आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, कुछ तो दिक्कत है। तो क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि डाउट ही ना हो किसी को कुछ। चलिए कोई बात नहीं। इन 17 लोकसभा इलेक्शन, ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कम अंडर डिबेट। वही वाली बात है कि जो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। इसको कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। नाउ इलेक्शन कमीशन का रोल है, वो क्वेश्चन में आया वाई, बिकॉज इफ यू सी कुछ एक इशू प्राइम मिनिस्टर के साथ भी थे, कुछ एक इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे भी थे, कुछ एक इशू इन द डिक्लेरेशन ऑफ द डेट्स फॉर इलेक्शन उनको डिले कर दिया गया था जस्ट बिकॉज देयर वाज सम प्रोजेक्ट टू बी अनाउंस्ड, राइट। सो ये चैलेंजेस हैं फेस्ड बाय द ईसीआई। यहां पे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द ईसीआई इन इट्स फंक्शनिंग एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो दो हेडिंग तो यही हो गई। यहां पे तो इस वाले सेंटेंस से आपको पता होना चाहिए कि आपको अब बताना है कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बता सकते हो, चाहे आप वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बता सकते हो या क्लीन चिट टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेटर्स बता सकते हो। इश्यूज में आप क्या बताओगे? इश्यूज में आप ये बताओगे कि भाई जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, कोई कॉलेजियम तो है नहीं, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरी बात, डी रजिस्ट्रेशन की जो पावर है वो नहीं है, ठीक है, डी रजिस्ट्रेशन की पावर भी नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। और इंप्लीकेशन क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम पे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैम्पर होते हैं, ठीक है, जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट इंपैक्ट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल अपहीवल्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। सो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ व्हाट कैन बी द वेज, वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई इसको पहले तो एक कॉलेजियम बनाओ अपॉइंटमेंट का, जिसमें या तो प्राइम मिनिस्टर को रखो, लीडर ऑफ अपोजिशन को रखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखो, और भी जिसको आपको रखना है रखो, बट इन तीनों को तो रखो। उसके बाद इसका जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज ऑन होना चाहिए, वोटेड ऑन नहीं होना चाहिए। इसको एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट मिलना चाहिए काम करने का। उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको लीगल बैकिंग मिलनी चाहिए, राइट। ये सारे इसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये 4-5 सब हेडिंग्स बना के इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, लॉस ऑफ पीपल्स ट्रस्ट, डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्क्लोजर, ये सब है। अच्छा, इसमें लॉ कमीशन ने भी बोला है कि लॉ कमीशन, ये जो कॉलेजियम मैं आपको बता रहा था ना, ये लॉ कमीशन ने बोला है। तो आप लॉ कमीशन, जरूरी नहीं है कि आपको ये याद रखनी है, 255th रिपोर्ट है। आप ये बोल सकते हो कि एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन देयर शुड बी कॉलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब होंगे, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट वगैरह आते हैं। With regard to the office of governor, critically analyze the major recommendations of सरकारी एंड पंची कमीशन। तो सबसे पहले तो आप इसमें यही बताओगे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर के साथ इश्यूज क्या है, अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट नहीं किया जाता इसमें, ठीक है, सेंटर अपॉइंट कर देता है। उसके बाद पार्टी लॉयलिस्ट या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब बन गया है जो सरकार के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाए रखने में काम देता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाए रखने में ये काम देता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम नहीं बनने देता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूम रखता है, ठीक है। उसके बाद हमें मेजर रिकमेंडेशन देखनी है सरकारिया की और पंची की। अब ये पंची, पुंची, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। मैं तो इसको पंची करता हूं, कई लोग इसको पुंची भी बोलते हैं, पता नहीं मुझे, बट ये है, ठीक है। तो जैसे मेजर रिकमेंडेशंस क्या है कि भाई जो गवर्नर होना चाहिए वो पॉलिटिकली
बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, जिसका वो गवर्नर बन रहा है, लेट्स सपोज राजस्थान के गवर्नर हैं तो राजस्थान से बिलोंग नहीं करना चाहिए उनको, तो स्टेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तीसरी बात, सीएम को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो स्टेट के जो सीएम है उनको कंसल्ट करना चाहिए इन हिज और हर अपॉइंटमेंट। व्हाई? बिकॉज सीएम और जो गवर्नर है इनकी सिनर्जी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद इनका रिमूवल ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो नहीं होना चाहिए। जो रिमूवल है वो भी आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके हाथ में होना चाहिए। जैसे इंपीचमेंट पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ऐसे गवर्नर का रिमूवल स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होने चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो ये सारे आपके वो हैं रिकमेंडेशंस हैं इनके, ठीक है। रिमूवल ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। पंची कमीशन ने बोला था ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नर शुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है। इसकी इंस्ट्रूमेंटालिटी तो हमन को पता ही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाए रखने के लिए जरूरी है। और आप मुझे बता सकते हैं कि गवर्नर की पोस्ट हमने कहां से ली थी, यह आप मुझे बताइए। नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आरपीए 1951 for disqualification of candidates and sitting representatives? Do these grounds have been diluted in favor of elected representatives? ठीक है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक नॉर्थ ईस्ट के एक लीडर थे जिनका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड था वो कम कर दिया गया था कुछ एक लूप होल यूज करके, जो आरपीए का लूप होल था सेक्शन 8 में, उसको यूज करके। तो वो एक एज अ कॉन्टेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से, ठीक है। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल 10 है उसमें क्या प्रोविजंस है और जो आरपीए है उसमें क्या प्रोविजंस है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और उसके बाद ये बताना है, डू यू थिंक दिस ग्राउंड्स हैज बीन डाइल्यूटेड इन फेवर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको एनालाइज करना। तो इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन है आरपीए 1951 में सेक्शन 8 ये वो करता है, तो अगर कोई इफ अ पर्सन कंटेस्टिंग इलेक्शन इज चार्ज विद एनी क्रिमिनल चार्जेस और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द सेम अर्लियर loses his right to stand for the election। और दूसरा, convicted for an offense punishable under section 153A, offense of promoting enmity between different groups। अगर कोई social tension बढ़ा रहा है, कोई enmity promote कर रहा है between two religious communities, तो उसको भी ये disqualify करता है, ठीक है। वेरियस अदर ऑफेंसेस भी हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, अगर किसी ने व्हाट वी से डिप्रेस क्लासेस के साथ कोई एट्रोसिटीज करी है किसी ने, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज में अगर वो भागीदार है, जैसे कि कई सारे अर्बन नक्सल्स हैं जिनको अर्बन नक्सल्स हम बोलते हैं या उनको लेबल किया जाता है अर्बन नक्सल्स, तो ऐसे जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर कन्विक्टेड होते हैं उनको भी दे लूज देयर राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, ठीक है। नार्कोटिक्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ऑल दीज थिंग्स। तो ये दीज ग्राउंड्स हैज बीन डाइल्यूटेड इन द फेवर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसके फेमस जो वो था केस है जो लिली थॉमस केस है, जहां पे होता क्या था, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था सेक्शन 8(4) को यूज करके, जहां पे एनी डिस्क्वालिफिकेशन शॉल नॉट टेक प्लेस इफेक्ट अंटिल 3 months आफ्टर द कन्विक्शन। आपकी कन्विक्शन हो गई, ठीक है, आपकी कन्विक्शन हो गई है, उसके 3 मंथ तक, उसके 3 महीने तक आपको डिस्क्वालीफाई किया नहीं जाएगा। एंड इफ अपील इज फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम टिल इट्स डिस्पोजल। अब होता क्या था कि जो अपील थी ये डिस्पोज ही नहीं होती थी, ऑब्वियसली बात है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन की जो अपील है वो, अब ये तो फैक्ट है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहने को काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जुडिशियल करप्शन भी है, दिस इज अ रियलिटी। तो वो डिस्पोज ही नहीं होती थी, और क्योंकि वो डिस्पोज नहीं होती थी तो वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होता था, बिकॉज दिस वाज अ प्रोविजन, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। एंड देन 2013 में लिली थॉमस के केस में इसको स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब इलेक्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्शंस क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे जो लोग हैं, या लोग ही लिख दिया मैंने इंग्लिश में, यही चक्कर होता है। पीपल गिव कंसेंट टू बी गवर्नड, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स
इनकी भी राइट होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब कल को मुझे खड़ा होना है तो मैं एक आम आदमी, छोटा सा बच्चा, वो कैसे खड़ा होगा इलेक्शन में किसी बाहुबली के सामने? तो बिकॉज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारा जो राइट टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ है वो भी हर्ट होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो आरपीए है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और आई होप कि आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ एक चीजें समझ में आई होंगी। लेट मी गिव अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑल्सो। जैसे अपन आंसर में करते हैं वही अपन को अपने कंडक्ट में भी करना चाहिए, तभी अपन आंसर में कर पाएंगे, राइट? तो अपन ने उस समय बात करी थी आंसर राइटिंग में दो चीजों की, एक तो कंटेंट की बात करी थी और एक प्रेजेंटेशन की बात करी थी। उस समय जो लोग सो रहे थे वो इस समय सुन सकते हैं, अगर वो जाग गए हों ड्यूरिंग द डिस्कशन। 2 घंटे क्लास है, 2 घंटे में तो काफी अच्छी नींद आ जाती है। कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट, एनालिसिस, इफेक्टिवनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन। और प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था सब हेडिंग्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, फॉन्ट एंड स्पेसिंग। ठीक है, इन पैरामीटर्स को याद रख के आपको अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कीप राइटिंग द टेस्ट, कीप इंप्रूविंग। जो भी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए हमसे, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो डू लेट अस नो। अगर आपको कोई डाउट है डू आस्क देम, आप मेल पे आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डू दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।